Priyanshi Jain with conference me. will now be recorded. We both are ACCA professional level students, and we both are taking today's session. Firstly, Priyanshi will tell you about distractions, some major distractions, and how to deal with those distractions. And then I will continue with how to focus on your goals in long term. The mic on. Am I audible, everyone? Yes, ma'am. Over to you, Priyanshi. Thank you. Welcome everyone and good morning to all of you. Today now we'll start the session on how to deal. Hello everyone, good morning. Am I audible to everyone? Okay, so let's start the session. And you can see on my screen a meme that is being created by Himanshu on becoming a gold learning partner of ACCA in Rajasthan. In fact, the first gold learning partner of Rajasthan. So nice creative, Himanshu. So now let's start with our session on how to deal with distractions in a student's life and stay focused. So we all have come with some distractions in our life as a student. So just I want to ask you a question. What all distractions you face in your life? Like as a student, what distractions you have in your life while studying or while outside the home and like so please write in the chat box what all distractions you face. Okay, I'm getting replies from the students. So I can see some answers. Mobile phones, PlayStation, Cyberpunk. Mostly I have seen that some students have
right? Social media, mobile phones. So now start with our session. The first and most biggest distraction in a student's life is social media and electronic gadgets. आप सभी ने देखा होगा कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम फोन साथ में लेकर रखते हैं और जैसे ही कोई नोटिफिकेशंस या कोई भी साउंड आता है तो हम उसको पहले देखने जाते हैं, अपनी स्टडीज को साइड में रखकर हम उस चीज को पहले देखने जाते हैं और उसको देखने में भले ही वो एक मैसेज ही क्यों ना हो किसी का, हम उसे बहुत देर तक उस फोन को अपने सामने रख के बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं। फर्स्ट अगर आपने मैसेज का रिप्लाई कर दिया, फिर आप इंस्टाग्राम चलाएंगे, फिर यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट, बहुत सारे एप्स है जिसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो और बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हो। सो ये चीज हमें नहीं करनी है, उसके लिए हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे। उससे पहले हम सारे एक बार जो भी मेजर डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे स्टूडेंट्स लाइफ में वो हम डिस्कस करेंगे पहले और फिर हम उस चीज से डील करना सीखेंगे। So the next one is indulging in a relationship. Mostly teenagers do this. I think they just, you can say boys and girls these days spend more time than necessary in pursuing and checking out each other. This may pose more diversion from your studies. Like if you have seen in your schools also, in your college, or at your coaching centers, everywhere you can, but I'm not telling you that this is a wrong thing, but if you do this in a limitation or if handled properly, you can concentrate at your studies as well as your relationships. So I'm not getting personal again of this, but yeah, you have to concentrate more on your studies rather than on this thing, right? So next one is random chit chats and gossips. I think that like if your friend calls you uh, for just like a fun conversation, you have to be you have to talk with that in a limitation. There's like if uh, often like 5 minutes small talk gets converted into 30 minutes of random conversation. So I know I'm not telling that you should not talk to your friends or your relatives. I'm telling you that if that doesn't interfere with your studies or your work, it's good. But if from that talk you are getting some negativity or some uh, you are just like distracting from your studies, so I think that should be in a limitation. Naman, okay, I'll tell in Hindi plus English if you don't mind. Is that okay, Naman? Okay, thank you. So जैसे अगर किसी अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से किसी से भी बात करते हैं फोन पर या फेस टू फेस, so you should maintain some positive vibes with the other person so that the person's negativity, अगर वो person नेगेटिव उसकी नेगेटिव वाइब्स आ रही है, अगर वो नेगेटिवली बात कर रहा है, तो आपको उस चीज से अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, जो कि आपको आपकी स्टडीज पे फोकस करने से डिस्ट्रैक्ट नहीं करे. And one thing also, as I have mentioned in the PPT, backbiting about other person is
very negative habit. Yeah, you should have to create or build a habit of not back bitching. Like अगर आपका किसी फ्रेंड का फोन आया, हाँ उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, you should not do that, right? So moving onwards, if you have to deal with distraction, like you have to uh, down your distraction value, you have to increase your value. Like I'll say you uh, some quotes. The most productive people in the world get one thing done at a time. Like I'll take the example of our Meenakshi ma'am only. uh, she will take the class at also, and किसी का अगर फोन आ गया तो मैम उसी टाइम पॉज करके मैम क्लास भी अटेंड कर लेते हैं। और अगर किसी निदा मैम या निशा मैम वो कुछ पूछने आते हैं तो भी वो भी कर लेते हैं। तो और उसके बाद वापस क्लास में आना, एंड मतलब स्टूडेंट्स को नहीं लगता है कि वो कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट हुए या फिर अपने जो पढ़ाने जो कोर्स है जो चैप्टर है उससे कहीं ना कुछ और ही बोल रही है। तो that thing is very good about her and we should all learn from her. So हमको हमारे काम पर बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहना है। So I will say one thing also, always have a move against every distraction. Like अगर आपको कुछ चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो आपको हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए कि भाई आप मतलब हमेशा अपने ये सब डिस्ट्रैक्शंस और ये टेम्पररी चीजें हैं। लाइक इट्स ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म, इफ यू फोकस ऑन योर लॉन्ग टर्म्स। लाइक अगर आपको जैसे एसीसी बनना है तो आप रोज की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं फोन चलाना, चैटिंग एंड ऑल सोशल मीडिया, इन सबको करो, मना नहीं कर रहे हैं कोई, बट इन अ लिमिटेड मैनर, जो कि आपको आपके काम में इंटरफेयर ना करे, आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, आपके थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट ना करे। जब आप अपने पढ़ाई पर हो, आप अपना काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आप जो भी काम कर रहे हो वो आपको अपना 100% देना है। ओके, सो नेक्स्ट, ways to avoid getting distracted. So here is the, like, find the best environment for efficient studying. So you should have like कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एक लिटिल बैकग्राउंड नॉइज भी चल रही होती है तो भी वो अपना बेस्ट कर लेते हैं, अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको पूरा साइलेंस चाहिए रहता है और तभी आप कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो यू शुड हैव दैट कि आप अपने आप को जाने कि आपको किस एनवायरनमेंट में आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको साइलेंट, पूरा रूम साइलेंट चाहिए तो आप एक साइलेंट रूम में जाकर पढ़ाई करो। और अगर आपको लगता है कि ठीक है, अगर पीछे बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा अगर हो रहा है तो भी आप अपने आप को कंसंट्रेट कर पा रहे हो अपनी स्टडीज में और अपने काम में, तो आप इट्स ओके, आप कर सकते हो वो चीज। तो इट्स लाइक यू हैव टू फाइंड द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर योर एफिशिएंट स्टार्टिंग। लाइक आपको अपने आप को जानना होगा कि आपको किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हो आप। ओके, सो नेक्स्ट इज गेट ऑर्गेनाइज्ड विद अ टू डू लिस्ट। सो यू कैन लाइक, अगर आप सुबह उठते हैं तो आप सबसे मेन चीज ये करिए कि आप एक टू डू लिस्ट बनाइए कि आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है। लाइक अपने आप को आप डेडलाइंस दे सकते हो कि आज ये काम मुझे करना ही करना है, कितना भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, बट यू शुड हैव टू डू दैट नो मैटर व्हाट। ओके, द नेक्स्ट वन इज silent notifications and open internet tabs to a minimum. So अगर जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो जब भी, तो आपको अपने फोन के नोटिफिकेशंस जो है
उसको आप साइलेंट कर दो या तो बंद ही कर दो, और फोन को ऐसी जगह रखो जहाँ पे आप पहुंचने में आपको थोड़ा टाइम लगे, तो कि आप उसको फिर बार बार उठोगे नहीं, तो इसलिए आप फिर उसको छोड़ दोगे कि नहीं मुझे नहीं करना आप। तो इसीलिए आप अपने फोन्स के नोटिफिकेशंस को साइलेंट रखो। और जो इंटरनेट टैब्स है, अगर आप कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहे हैं, फोन से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो वैसे भी सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो बहुत से बच्चे होते हैं क्लास चल रही है और फिर हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो आप उस टाइम अपने जो ये एप्स है उनको या तो ब्लॉक कर दो या उनपे पासवर्ड वगैरह ऐसा कुछ लगा दो, तो कि आप बार बार उसको खोलने नहीं जाओगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम आपको उसी चीज पर फुल कॉन्सेंट्रेट रहना है। एंड सो नेक्स्ट वन इज break big projects into small pieces. जैसे बहुत लाइक मैं एग्जांपल दूं अपने एसीसीए का, तो जैसे अगर आपको एसीसीए पूरा कंप्लीट करना है, पूरा एसीसीए एफिलिएट एंड एसीसीए मेंबर बनना है, तो उसके लिए आपको पहले 13 पेपर्स पास करने पड़ेंगे, फिर आपको अपना पीईआर देना पड़ेगा 3 इयर्स का। तो ये सब एक जैसे एसीसी एक अपना एक बिग प्रोजेक्ट है, और उसको एसीसी वालों ने एक स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। लाइक 13 पेपर्स है तो यू कैन गिव एग्जाम एट योर लिबर्टी, 1 or 2 एट योर लिबर्टी, विच एवर यू थिंक। तो अगर एक एक करके हम पूरे 13 पेपर्स पास करते हैं, क्लियर करते हैं, फिर आपको जाके पीईआर कंप्लीट करना पड़ता है, देन you will have a ACCA membership or you be ACCA affiliate। तो ये चीज है कि आप अपने जो बड़े गोल्स हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे अगर आपको कुछ लाइक आई गिव यू एग्जांपल ऑफ, अगर आपको डांसर बनना है तो आपको आज से ही थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक अगर आपने आज एक दिन में 2-3 घंटे अपने आप के, पहले आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिर आप जाके अपना वो जो बिग प्रोजेक्ट है, जो कि आपका बिग ड्रीम है, आपको एसीसीए बनना है, डांसर बनना है, तो वो आप फिर कंप्लीट कर पाओगे। अगर डायरेक्ट सोचते हो कि हाँ मुझे डांसर बनना है, तो यू विल नॉट बी। आपको रोज थोड़ा थोड़ा डांस करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी आप वो डांसर बन सकोगे। एंड सो break your big projects into a small pieces। एंड also अगर आप कॉम्प्लेक्स टास्क मीन्स जो चैलेंजिंग वर्क होते हैं, अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि हाँ कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, तो आप कैसे भी करके उसको कंप्लीट करना चाहोगे। आई हैव मेंशन्ड यू अर्लियर आल्सो, यू हैव टू क्रिएट डेडलाइंस। लाइक अगर आपको जैसे कुछ प्रोजेक्ट दिया गया है तो आपको कल सबमिट करना है, तो आप उसको पोस्टपोन नहीं करना चाहोगे। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, दे प्रोक्रेस्टिनेट। लाइक प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स you delay things to do it on a later time। तो you should not do that। अगर आपके पास कुछ काम आया है तो हमें आज ही कंप्लीट करना है before the deadline। okay, so the next one is use music and headphones to cut down noise। तो अगर जैसे आप एग्जाम्पल स्टूडेंट्स का ही है, तो पढ़ाई कर रहे हो आप, तो आप हेडफोन्स लगा दो। बाहर जो भी नॉइज हो रही है, एक्सटर्नल नॉइज जो भी बाहर हो रही है, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं व्हीकल्स की आवाज आ रही है, सो यू शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट विद दैट नॉइज। तो इसलिए आप या तो अपने हेडफोन्स पुट ऑन कर लो, और या फिर आप अपने साइलेंट रूम में जाके बैठ सकते हो,
whatever you like to do, you can do it. Okay. So next one is clean up and organize your workspace. जैसे आप अपनी डेस्क को क्लीन रख सकते हो, जो कि आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देगा कि हम, हाँ, आज जैसे आपकी डेस्क क्लीन है तो आपको पढ़ाई करने की भी इच्छा होगी। और जैसे आप, आई वुड से लाइक, जैसे एक टेबल है जिसपे बहुत सारी गंदगी है, लाइक कुछ सब कुछ बिखरा पड़ा है, फिर आप अपनी बुक्स लाके अपना लैपटॉप या फोन जो भी लाके पढ़ाई कर रहे हो, तो आप, आई विल 100% टेल यू दैट यू कांट कॉन्सेंट्रेट, यू कांट फोकस ऑन योर स्टडीज। आपके पास जो भी डेस्क पर या टेबल पर चीजें पड़ी होगी उस पे ऊपर आपका ज्यादा ध्यान जाएगा। तो बेटर ये है कि आपको अपना डेस्क जो है, अपना जो टेबल जो है, उसको क्लीन रखो, जो कि आपको एक फोकस देगा, आपको कंसंट्रेट करने के लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि मुझे अपना डेस्क क्लीन रखना है। एंड द नेक्स्ट वन इज reward yourself for accomplishments. Like if you have completed your, like जैसे आपको टेस्ट देने को मिला, तो आपने अगर टेस्ट दे दिया कंप्लीट, और तो आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हो कि हाँ, मैंने ये चीज कंप्लीट कर ली है। जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर, जैसे बुक होती है तो उसके कुछ कुछ पेजेस के बाद चॉकलेट्स पड़ी होती है, ऐसा आई हैव सीन। तो फिर आप जैसे उस टॉपिक तक पहुंचते हैं या उस पेज तक पहुंचते हैं, तो you have a reward for yourself that I'll eat a chocolate, like in this case you will eat a chocolate. अगर आपको मूवी देखनी तो आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपने कुछ काम कंप्लीट किया है तो आप या तो आप मूवी देख सकते हो या अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें जो कि आपको अच्छी लगती हो तो वो आप चीज कर सकते हो वो सब। सो नेक्स्ट वन इज मेडिटेट डेली। मेडिटेशन बहुत एक अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बट अगर आप ये करोगे, आई वुड रिकमेंड यू डूइंग दिस, इट हेल्प्स यू अ लॉट। जैसे कि आपका स्ट्रेस लेवल इससे बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, एंड यू विल बी फोकस्ड ऑन योरसेल्फ। मतलब आप अपने आप में बिलीव करना चालू कर दोगे कि यस आई कैन डू दिस, बट आई विल नॉट डिस्ट्रैक्ट व्हाइल डूइंग दिस, सो यू कैन डू दिस। आपको अपना जो स्ट्रेस लेवल है वो अंडर कंट्रोल लाने के लिए आपको मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर दैट आपको अपना माइंड, उससे क्या होगा, आपका माइंड काम होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, और आप अच्छे से सो पाओगे, और आप अपने जो ड्रीम्स हैं, आपके जो एम्बिशंस है, आप उनके बारे में ज्यादा सोचने लग जाओगे इंस्टेड ऑफ द थिंग्स दैट आर डिस्ट्रैक्टिंग यू। And last is eat healthy. Also, you have heard this, healthy mind leads to healthy body. Just like that, अगर आप meditate करोगे तो उससे आपका mind healthy होगा, और आप अच्छा खाओगे, eat well, तो उससे भी आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और उससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। जस्ट लाइक यू हैव सीन दैट अगर कोई इंसान ज्यादा जंक फूड्स खाता है तो वो ही वुड ऑलवेज बी डिस्ट्रैक्टेड, मतलब वो फोकस नहीं कर पाएगा। और जो लोग ज्यादा वेजिटेबल्स और ये चीज खाते हैं तो वो अपने आप के ऊपर ज्यादा अपने काम के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे और ज्यादा फोकस कर पाएंगे। So you have to be meditate daily and eat healthy. Like I would literally tell you that मेरा खुद का एग्जांपल लेती हूँ। मैंने भी अभी मेडिटेशन स्टार्ट किया था। भले ही अगर आप मेडिटेट करते टाइम आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, बट
start it. I am telling you, it works a lot. वो आपके माइंड को शांत भी करता है, एट द सेम टाइम वो आपके जो आपको जो करना है, द एम्बिशंस और यू व्हाट ड्रीम्स और गोल्स यू हैव, दे दिस meditation helps you achieve that. Literally I'm telling you, you should do this or try this. uh, मतलब कुछ दिनों के लिए भी ट्राई करोगे तो फिर आपको खुद को ही लगने लग जाएगा कि नहीं, मुझे अभी आगे इसको करते रहना है, रेगुलरली करते रहना है मेडिटेशन। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। It's a brief recap of all which we have discussed earlier. Just like develop a routine, you have to develop a routine. Like I have told you that you have to make a to-do list every morning. आपको अपने थॉट्स जो भी आपको आ रहे हैं, आपको जो भी करना है, तो वो आप सब एक डायरी में आप नोट करते रहो, दैट आई हैव टू डू दिस थिंग, और आप अपने आप को फोकस रखोगे। एस्टैब्लिश सम गोल्स। This is the most important thing. We all should have some goals in our life. Uh, Next one is start with the hardest. I have said you earlier also that take on more challenging work. अगर जैसे आप कुछ ज्यादा चैलेंजिंग वर्क लेते हो, कुछ जिसमें की डेडलाइंस हो, तो वो आपको ज्यादा अटेंटिव रखेगा। आई वुड टेल यू दैट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो, अगर आपका बॉस आपको कहता है कि मुझे आपको विद इन 2 days ये प्रोजेक्ट और ये पीपीटी कंप्लीट करके देनी है, तो यू शुड डू दैट। इससे क्या होगा कि आपको वो उससे आपकी स्किल्स भी बढ़ेगी, प्लस इंटेलेक्चुअल जो आपकी मेमोरी होगी वो भी बढ़ेगी। आप कम टाइम में कुछ ज्यादा सीखने की कोशिश करोगे। ओके, और वो चीज आपको मोटिवेट करती रहेगी। So the next one is switch off electronic devices. This is the most important thing while studying. Or you can also do one thing that अगर कोई नोटिफिकेशन आए तो उसको या तो साइलेंट कर दो, या फिर कोई वेबसाइट है या उसके बार बार आ रहे हैं तो आप उसके नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर सकते हो। यू हैव मेनी मेनी थिंग्स टू डू टू स्टे फोकस्ड। लाइक अगर आपको लगता है मोबाइल फोन बहुत ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करता है और इवन सोशल मीडिया बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, तो आप क्या कर सकते हो कि ठीक है, आप एक टाइम लिमिट सेट करो। आई थिंक इंस्टाग्राम और इन सब में भी टाइम लिमिट्स आती है कि आप सेट कर सकते हो कि 30 मिनट्स 1 आवर जो भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको 30 मिनट्स या 1 आवर तक लिमिटेड रख सकते हो कि भाई मुझे सिर्फ 1 आवर या 30 मिनट्स तक ही चलाना है, उसके आगे एक्सटेंड नहीं करना है। उसके आगे मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपना जो भी काम है वो कंप्लीट करना है। और सोशल मीडिया इज लाइक आई विल टेल यू, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ सोशल मीडिया लाइफ इज ऑल अबाउट शो ऑफ, नथिंग एट ऑल। Then next one is reward yourself. Absolutely, you have to reward yourself after every accomplishment of your small things. तो you आपको अपने आप को रिवॉर्ड करते रहना है। Eat well and make yourself comfortable. This all we have discussed earlier. And silence is golden. Like here it is written that an alternative music without lyrics. जैसे प्लीजेंट म्यूजिक होता है ना कुछ, जिससे आपको खुद को, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होता है, आपका माइंड काम होता है, तो वो आप चीज ट्राई कर सकते हो। अगर आपको जैसे ब्रेक लेना है, आई वुड टेल यू दैट जैसे आपको अगर आप एक बिगिनर, मतलब पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता है, तो आप 25 मिनट्स पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट्स ब्रेक लो। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप उस चीज को एक्सटेंड करो। लाइक 45 मिनट्स आप पढ़ो और 5 to 10 मिनट्स आप ब्रेक लो, उससे ज्यादा नहीं।
तो उससे क्या होगा, आपको फिर धीरे धीरे ये चीज लिमिट बढ़ती रहेगी और आपके ब्रेक्स जो हैं वो कम होते रहेंगे। तो ये चीज आपको करनी है। आप अपना फोन में टाइमर सेट कर सकते हो कि मुझे सिर्फ इतनी देर तक, अगर टाइमर नहीं तो आप एक रिस्ट वॉच या क्लॉक जो होती है वो अपने सामने रखो। मोबाइल फोन सामने में रखने के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। आप क्लॉक या रिस्ट वॉच रख दो, आप टाइमिंग देखते, टाइम साथ साथ देखते रहो और पढ़ते रहो कि इतने टाइम बाद मुझे ब्रेक लेना है। और अगर आपको फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ टाइम बाद आपको खुद को लगेगा कि यार ठीक है, अब ब्रेक नहीं चाहिए, अब वी डोंट नीड द ब्रेक, तो आपकी ये हैबिट बन जाएगी कि आप ब्रेक ना लो। तो आप इस चीज से फोकस, अपने पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा दे पाओगे। नेक्स्ट वन इज eliminate all distractions and focus on things that add value to your life. We all have said this, uh, like आप अपने गोल्स पे फोकस करो, और अपन जो गोल्स हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे आपको एसी से बनना है तो आपको बनना ही है, मतलब आप सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, सब कुछ हटा दो और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करो, दैट इज योर स्टडीज। Like in you down the picture, you can see this distraction and traction. Distraction is actions that move us away from what we really want. तो डिस्ट्रैक्शन, वी ऑल नो दैट हमको जो चाहिए उससे वो हमको दूर ले जाता है। और अगर उसी में हम अगर डिस्ट्रैक्शन के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले लें और हम ट्रैक पे आ जाएं, तो दैट इज एक्शंस दैट मूव अस टुवर्ड्स व्हाट वी रियली वांट। तो आपको हमेशा एक बना लो कि हमको डिस्ट्रैक्शन के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना है जो कि हमें हमारे गोल्स जो हमको रियली में चाहिए उसके पास में ले जाए वो हमें। ठीक है, सो नाउ विल शो यू अ स्मॉल वीडियो, enjoy this and I hope you will learn something from this. Ma'am, voice is not audible.
I hope you have seen the video and learned something from it. And now Nishtha ji will take the session. Over to you, Nishtha. Hello everyone. Thank you, Priyanshi. Before starting with my part of session, I have a request to all of you. I will ask questions throughout the session. Please try to answer those questions. Uh, हमारी जब क्लासेस होती है तब मैं भी ट्राई करती हूँ कि जितने क्वेश्चंस का मैं आंसर कर सकती हूँ उतनों को आंसर कर दूं, क्योंकि अगर मैं क्लास में आंसर नहीं कर रही हूँ तो इसका एक ही मतलब होता है, या तो मैं सो रही हूँ या फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सो प्लीज ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है और आप सो नहीं रहे हो. Okay. So let's begin with the session. Are you guys ready? जैसा कि अभी प्रियांशी ने हमें बताया, डिस्ट्रैक्शन इन स्टूडेंट लाइफ, तो मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ. So what is distraction? अभी हमें प्रियांशी ने बताया कि डिस्ट्रैक्शन क्या है. So answer guys, what is distraction? Social media. I'm waiting for your answer. Distraction is something that Not won't exactly let you social do media. what you want. Yeah, right. तो बेसिकली जब हमें कुछ करना होता है और कोई चीज है जो हमें उससे रोक रही होती है तो वो हो जाएगा डिस्ट्रैक्शन. ओके. और फिर प्रियांशी ने हमें कुछ बेसिक डिस्ट्रैक्शन बताया कि कौन सी चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्शन मेनली है, सोशल मीडिया या, और उससे डील कैसे करना है हम लोगों को, ये भी प्रियांशी ने बताया. ओके. सो डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा तरीका ये है कि हम मोटिवेट रहे पूरे टाइम, क्योंकि अगर हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हमें क्या करना है तो फाइनली हम हमारी सक्सेस जो हमारे लिए है उसको अचीव कर पाएंगे. मोटिवेशन, व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन वो ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे हमें पूरे टाइम ये मिलता रहेगा कि हमें करना है, क्यों करना है, वो चीज हो जाएगी मोटिवेशन. ठीक है. मोटिवेशन कैन बी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में तो हमें ये होता है कि लास्ट जैसा प्रियांशी ने हमें बताया कि हमको रिवॉर्ड करना है तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म मोटिवेशन. पर लॉन्ग टर्म मोटिवेशन क्या होता है? जैसे कि हमें कुछ है कि एसीसी हमको क्यों बनना है, वो हो जाएगा हमारे पास लॉन्ग टर्म मोटिवेशन. जैसे कि हमने बहुत सारे डांसर्स वगैरह कुछ किसी को भी देखते हैं तो उनके पास लॉन्ग टर्म मोटिवेशन होता है कि हमें क्यों करना है. जैसे लास्ट टाइम अभी थोड़े टाइम पहले इंडियाज बेस्ट डांसर ओवर हुआ था, तो उसका जो विनर था उसको उसकी मॉम के लिए ये करना था कि उसको उसकी उसकी जो मॉम थी वो ना लोगों के घर पे जाके काम करती थी, तो उसको था कि उसकी मॉम को प्राउड फील करवाना उसको, तो उसके लिए वो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन था. अब आपको आपकी लाइफ का मोटिवेशन ढूंढना है कि आपके लिए क्या मोटिवेशन है और आपको ये चीज क्यों करनी है. ओके. नाउ व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस सबके लिए अलग होती है. किसी के लिए सक्सेस हो जाएगा कि हमको एसीसी का पेपर क्लियर करना है, या किसी के लिए हो जाएगा कि मेरे को रैंक लानी है. ओके. तो अब आपको उसके सक्सेस के टुवर्ड्स काम करना है कि आप सक्सेस हमको या तो हम शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस कर सकते हैं या हम लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे लिए हो जाएंगे जैसे कि एक पेपर क्लियर करना है, और लॉन्ग टर्म गोल हो जाएगा कि हमें एसीसीए बनना है. और उसके बाद हमारा जो मेन गोल होता है, हो सकता है कि किसी का मेन गोल हो कि मेरे को किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनना है. ठीक है. हम या दो तरह से हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं, या तो हम शॉर्ट शॉर्ट गोल बनाए और फिर लास्ट में हमें पता चले कि हमारा ये मिशन है कि हमको ये करना है. या बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पहले से पता होता है कि हमें लाइफ में क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग वो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं. और जैसे हम में से बहुत सारे लोगों को पहले पता नहीं हुआ कि हमको एसीसीए करना है. 10th पास की पहले, फिर उसके बाद 12th क्लियर किया, उसके बाद हमको पता चला कि हमको एसीसीए करना है. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले से पता होता है कि उनको क्या करना है लाइफ में. जैसे कि हमारे पास एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिरेन, जिसको अभी से पता है कि उसको यूट्यूबर बनना है. और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे डांसर्स वगैरह हो गए, सिंगर्स हो गए, उन लोगों को पहले से पता होता है कि हमको लाइफ में आगे क्या करना है, तो उसी चीज को फोकस करते हैं.
ठीक है, अब हम इसको दोनों वेज में समझते हैं। जैसे ये ना हमारी बुक का ACCA के नॉलेज लेवल से लेके SBL है ये चीज, तो हम इसको एक बार कंपनी के फॉर्म में समझते हैं, उसके बाद इसको हमारी लाइफ से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे गूगल हो गया, उसका मिशन स्टेटमेंट है कि उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है लोगों को, यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। ओके, तो फिर वो क्या करता है कि इसके छोटे छोटे गोल्स बनाता है और उन गोल पे फोकस करता है, फिर उससे लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करता है उसके, और फिर शॉर्ट टर्म गोल्स पे आता है। ठीक है, और अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या करेगी कि उसका भी अप्लाई करेगा। सपोज आप लोग के पास एक आइडिया है कि हम फूड ट्रक स्टार्ट करते हैं, तो फूड ट्रक स्टार्ट किया, अच्छा चल गया, उसके आगे हमने सोचा कि और फूड ट्रक्स ले लेते हैं, तो और फूड ट्रक्स लेके हमारा बिजनेस आगे बढ़ाया। उसके बाद हमको और लगता है कि हम ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो फिर हम कोई डाइवर्सिफिकेशन के लिए दूसरा कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो उस तरह से हम लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करते हैं। ठीक है, हमारा कंक्लूजन ये था कि हमको सक्सेस चाहिए। अब सक्सेस क्या चीज है हमारे लिए, वो हम ही को डिसाइड करना है। अब सक्सेस को कैसे अचीव करना है, वो हो जाएगा मोटिवेशन। और जब हमारे पास मोटिवेशन है तो डिस्ट्रैक्शन ऑलरेडी नहीं होंगे हमारी लाइफ में। ओके, सो हमें हमारी लाइफ के मिशन और विजन क्लियर होने चाहिए। हमें पता होगा कि लाइफ में क्या करना है, तो डिस्ट्रैक्शन वैसे ही नहीं होंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड परसों रिजल्ट आ रहा है, सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एवरीवन। All of you stay here only. We'll have a fun game. You'll learn a lot from it. So stay here only. Okay. Before starting the game, I'll tell you the rules of the game. हम कुछ लाइंस बोलेंगे, कुछ डायलॉग्स हिंदी में भी हो सकते हैं और इंग्लिश में भी हो सकते हैं, और हम आपको distract करने की कोशिश करें, और हम आपको distract करने की कोशिश करेंगे by playing the music in the background. फेमस डायलॉग है, जैसे ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली वो लाइन नहीं लेंगे, कुछ लाइन एग्जैक्टली डायलॉग हमने चेंज कर ली, जैसे ये हाथी मुझे दे दे ठाकुर। तो ये जब लाइन मैं बोलूंगी ऐसे, तो आपके बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बजेगा। म्यूजिक कैन बी एनीथिंग, मतलब बॉलीवुड कुछ भी हो सकता है। तो हम आपको ट्राई करेंगे डिस्ट्रैक्ट करने की, बट यू डोंट हैव टू डिस्ट्रैक्ट। ओके, यू हैव टू फोकस ऑन योर व्हाट वी आर सेइंग यू, so you have to stay focused for this, and the first one will get 10 points, second one will get 5 points, and the third one will get 2 points. And you have to write in the chat box the entire dialogue what we are saying to you. Okay, according to that we'll give you the points, and at last jiska bhi score zyada hoga wins the game. So I hope you all have got the rules. प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बता दो कि हैव यू गॉट इट और नॉट। शुड आई रिपीट इट अगेन? मैं एक बार वापस बेसिकली डाल देती हूँ। बेसिकली हम एक डायलॉग बोलेंगे, तो आपको एग्जैक्टली वो लाइन सुननी है ध्यान से, और आपको वो अपने चैट बॉक्स में लिखनी है। Divyanshu, no, you have to answer the dialogue, like you don't have to write the movie name. आपको सिर्फ डायलॉग का, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ये हाथी मुझे दे दे ठाकुर, तो आपको ये पूरी लाइन लिखनी है चैट बॉक्स में,
don't open your mic cause it will create some glitch. So आपको पूरी line लिखनी है. Okay. So now we'll start the game. Here we'll go with the first clue. रिस्क करना खता है तो सजा दो मुझे. रिस्क करना खता है तो सजा दो मुझे. Answers. The correct line was risk करना खता है तो सजा दो मुझे. So first one is Anant here, and फिर तो किसी ने भी I think फिर जुहैर ने दिया है. Then विनीता. जिन्होंने ऐसा लिखा है इश्क करना खता है, मैं आपको बोल दूं, वापस रिपीट करती हूँ कि हमने कुछ वर्ड्स चेंज किए हैं, तो आपको वो चीज ध्यान से सुननी है. ठीक है. एंड ऑल्सो नोट दैट मेनली मैं सिर्फ एक बार ही रिपीट करूंगी, सेकेंड टाइम रिपीट नहीं करूंगी, तो आपको एक बार में ही अच्छे से ध्यान से सुनना है. इज दैट ओके? सो नाउ वी आर विद द सेकेंड क्लू हियर. टोडा कुत्ता रोनी सड्डा कुत्ता कुत्ता. Yes, Tanvi, you have to write the same line what we are speaking. Okay. Then first is here. First is Naruto. Is that Moise? Then second Payanchi, and third is Anant. नरूतो प्लीज जो भी हैं आप प्लीज अपने एक्चुअल नेम के साथ आओ, सो दैट वी कैन डू द रैंकिंग. ओके. तेरा क्या होगा लैला. So here we have got first is Shivansh, second actual name is that Moise, and third is Naman. Bayanshi, it's not Kalia. Its actual line is Tera kya hoga Laila. Okay. What is the actual name? Okay.
नेक्स्ट क्लू नाम तो कमाल छे पर सरनेम बवाल छे नाम फर्स्ट मोइज सेकंड तन्वी थर्ड अनंत नेक्स्ट क्लू पिक्चर अभी बाकी है मेरे टोस्ट we are getting the answers. First is Anant. Sorry, Anant nahi. Anant, the actual dialogue is picture abhi baki hai mere toast, not dost. Okay. So first is Kamal. Then second Tanvi. And third is Payanshi. Okay. So next clue we are telling you. बच्चे की जान लेगा क्या? So here we are getting the clue answers. Okay. First is Farhan MG. Then second is Payanshi. Third is Burhanuddin. Okay. The actual line was बच्चे की जान लेगा क्या? ठीक है? So next clue. लगता है कोनो फिरकी ले रहा है जिसकी मैं बात कोई टाल को नहीं सकता और कोई कोई मेरी मां से मेरी Now we are getting the answers here. First is Muiz. Second Burhanuddin. Third is Shivansh. Okay. Actual line was लगता है कोनो फिरकी ले रहा है. Guys, we hope that you find this game interesting. Now, second clue. Oh, sorry. जो डर गया समझो सुधर गया. जो डर गया समझो. So now here, first is Moez, second Shivansh, and third is Payanshi. Guys, you have to be quick while writing the whole dialogue. So now getting the next clue for you.
बसंती इन भूतों के सामने मत नाचना। It's not that कि we are not judging properly. It's like कि हमारे पास जिनका first आएगा उसको हम first point, उसको हम 10 points देंगे। जिसका हम हमारे chat box में जिसका first name show होगा उसको देंगे first, जिसका second उसको second, and the third one आपको जो show हो रहा होगा उसके according नहीं होगा ये चीज। Is that okay, Divyanshu? So here the first one is Tanvi, second Payanshi, and third is Naman. हम लोग वाइन्स की तरफ से हैं। So you guys are very quick. Now, first one is Moise. Sorry, not Moise. 1 minute. First is Payanshi. Second is Shivansh. And third is Moise. Moise, second one. Then next clue. Twinkle, twinkle, little star, how I thunder what you are. Actual line was twinkle, twinkle, little star, how I thunder what you are. Not wonder, it's thunder. So here first one is Tanvi, second Payanshi, and third सबने वंडर ही लिखा है तो थर्ड इसमें कोई है ही नहीं। And also Shivan's third. Last two clues, guys. So be quick for that. जा सिमरन जा, खा ले अपनी पानी पूरी। First one is Tanvi, second Payanshi, third Moise. Actual line was जा सिमरन जा, खा ले अपनी पानी पूरी। Now the last clue for you. हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती है। So we have got our first
please here. First is Tanvi, second Anand, and third is our actual Moise. Okay, congratulations everybody who played this game, and thank you. We hope that you have enjoyed this and learned from this game. So we'll announce the winners in a few minutes. Till then, I want you to watch a video. So here is the video. Okay. हम चला रहे हैं In today's world of unlimited distractions बहुत and short लिखने में attention कोशिश spans, करेंगे आ रही क्या आपको जो वीडियो दिख रही है देखो don't succeed. It's no wonder so many people never achieve anything significant. No wonder so many people never reach their true potential. मैम दिख If you रही want है to achieve anything great, you must shut out all distractions. Successful people are focused people who go into a space where they shut out where they lock in on the task in front of them. Lock in on their goal. Lock on their dream. If it is important enough to you, you will set out all distractions. Shut the door. Turn your phone off. Turn off social media. Lock in. Focus and get the job done. A recent study pointed out that the average adult spends around 1 hour and 40 minutes every day on social media. That's nearly 12 hours per week, over 50 hours per month, 616 hours per year. It adds up to 128 days over a period of 5
years. Imagine if you use that time better. Just imagine if you replace that wasted time. Those who don't succeed, let's call them, I don't know, the majority. They're like a puppy with a bone. Anytime a bone comes along, social media likes or comments, a text, a TV show, and Thank you, Priyanshi. Okay, everybody. So I hope you enjoyed this session. As you know that we have kept these sessions open for students. So यहाँ से जो हमारे February तक के sessions होंगे वो हमारे ही students लेंगे. And even the PSCNs can come forward and volunteer to take these sessions. Next week session रहेगा मोइज का और तन्वी का. Now, before we sum up the session and before we declare the results, I have a quick feedback form for you. Because आप लोग कहीं ना कहीं में help करोगे. Moiz means the second senior Moiz. आप लोग हमें help करोगे to advise us that as to who should be the winner. So this is a competition. Everybody who's taking this session is all obviously being awarded with a certificate that they have taken this session with a gold learning partner. Plus, we'll also take this as competition. So all the people who are participating in this are motivated to perform better. So there's a small link I have sent in the comment section. तो एक छोटा सा feedback है जो आपको देना है. You can go to Menti, and Menti पे you can type this particular code. या तो फिर you can just click the link and give the feedback. Yeah, so I'm just waiting for your feedback, everybody. The feedback, please keep on putting down your votes. I've just received 2 votes so far. I request everybody comment section में दे रखा है, आप please उस पे voting करें. Can't see the link. Khushi, you can go to www.menti.com and use the code 7599367. You can see it on the top of my screen. The link is in the comment section. I'll repost the link though. 1 second. I'm reposting the link, everybody. Either you can click the link or you can go to www.menti.com and use the code 7599367. Your votes are something which is very, very important. I hope Moiz and Tanvi are there in the session, right? Okay, soon after this, Moiz and Tanvi will be sharing a Google form because next week is their session. So they want your help in understanding as to what kind of topic they should be picking. I'll just quickly brief you on the question, choice of the topics. So Nishta and Priyanshi were free to decide the topics they wish to conduct the session on. Creative prepared or the poster prepared. So I hope you must have seen the creative which was circulated for the session, which was again prepared by both of them. We just advised them the ways through which they can do this, but the entire creativity was of both the students. Punctuality, the time at which the session started, confidence of the speaker, Nishta, and confidence of the speaker Priyanshi, creativity used in the session, and the game of the session. Oh, I can see a highest scoring being given to the game of the session. I request everybody else to please cast in their votes. Yes, next week also sounds very, very interesting because next week the P-level students Tanvi and Moiz will be taking the session and they seek your help for the session topic. So they'll be soon sharing the form in this current session itself, a Google form which you just have to fill up to help them understand what should be the session topic. Okay, and by the time, Tanvi, just 5 minutes, let them cast the votes, otherwise they'll get confused with 2 links. Yes. Okay, by the time, I'll just invite, I hope you're able to see the
Okay, everybody, I hope you're able to see my screen and you're able to see us. Okay, so by the time we're waiting for your votes, I'll just invite Nishtha and Tanvi. Oh, sorry, Nishtha and Priyanshi, my bad. So we have here with us Nishtha. Who's gonna come first? Here we have Nishtha. Your certificate of conducting the session is a small token from our side. And yes, the first gold mask, because PFC is now the gold learning partner, so that goes to you with that. Use it. And next is Priyanshi. Priyanshi, please come over. Congratulations and great efforts. This is small from our side. Great going. Time to have. So can we congratulate all of them, and we'll just go to the back to the score meter. Congratulations, guys. Great effort. I thoroughly enjoyed the session. I don't know how was your reaction, but we'll just check what was your reaction. So, wow, the score is really good. Are there any other students left to cast their votes? So that's the score meter. And we will have the similar score meter next week for Tanvi and Moiz. Tanvi, Moiz, you can share your Google form now. You can share your Google form now. So they just need a small help from your side as to what kind of topic you would be interested in. So there is a small Google form which they have shared. We would really appreciate if you can fill this up. Do we have the list of the winners? Yes? Okay. So we already have the list of winners. And the winners are, okay, so Moiz and Tanvi have shared the Google form in the comment section in the chat box. You can just refer the Google form. Okay, we have the winners. So I would request the session speakers to announce the winners. Session speakers, over to you. Congratulations for the wonderful session. Nishtha and Priyanshi, I know it's like well, the moment has come where we have to announce the winners. So if you can announce the winners. Okay, so we have the list of winners. Second is Tanvi. Second one is Tanvi. Congratulations, Tanvi. And the first one is Payanshi. Congratulations, Payanshi. First is Payanshi, I repeat, and the second one is Tanvi. Please collect your prizes from PFC. Tanvi will do one thing. We'll create a parcel for you for all the prizes you've won, and we'll courier them to you. Congratulations to all the winners. I hope you enjoyed this session. Thank you so much, Nishtha and Priyanshi, for your immense efforts. They have been working hard for this session since last week. And all the best for your results. Chinjin ke results due hain. Monday ko result hai. All the best for your results. I'm sure you'll clear the papers with great scores. And do update the results, please. Monday class timing. Okay, one more thing. On the app, you will be sent a form. Only the students who fill up the form can come during the regular time. Whatever is the schedule remains the same.